بات نہیں. جی ویلکم بیک جی. ارشد صاحب آپ چونکہ لو فیس اسکولوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسائل ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کے لیے کیا کرے؟ جی پروفیسر, بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ٹیچرز کو لے کے, تو آپ جیسا آپ کہہ رہے تھے جی ان کی ایسوسیشن بڑے دھڑلے سے کام کر رہی ہے, کر رہی وہ کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کے لیے ایک المیہ ہے کہ اس کا جو ٹیچر وہ روڈ پہ ہو اپنے حق کے لیے, اپنی زیادتیوں کو ختم کروانے کے لیے. گورنمنٹ کو حکومت وقت کو ضرور اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ٹیچر کو عزت دی جانی چاہیے. آپ ڈفرینٹ ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں گے, اگر یعنی فرانس کی مثال لے لیں, وہاں اگر ٹیچر کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو چیئر پیش کی جاتی ہے اور جا کر وکیل صاحب اس کا احترام کرتے ہیں. یہاں کیا حال ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پارٹ ادا کر رہا ہے, حکومت کا ساتھ دے رہا ہے. اگر حکومت کو لگتا ہے کہ جی ہم کو بہت زیادہ فیسیں لے رہے ہیں, یہ بڑی ہم نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے, تو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت کا ہی ادارہ ہے. ہم ان سے کہتے ہیں, بلکہ بارہا کہتے ہیں کہ ہم فیسیں لیتے نہیں ہیں. آپ ہمارے پرائیویٹ سکولز کو, سارے سکولز کو آپ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیں. وہاں جو آپ 450-500 دے رہے ہو کہ ہم 450-500 لے لیتے ہیں, آپ خود لے لیں اور ہم آپ کو آپ کی مرضی سے بھی اچھے رزلٹ دے سکتے ہیں. یہاں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ذکر کرتے ہیں, یہ ان اسکولوں کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں نا جو 1000 تک فیس لے. جی بالکل. ہاں, اگر اس سے دیکھیں جو بھی بچہ اس وقت ٹاٹ والے اسکول میں بیٹھ کے یعنی گورنمنٹ اسکول میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے, ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ کا 3200 اس پہ خرچہ آ رہا ہے. جب دوسری طرف 1200 کی جگہ اگر آپ کو 6-7 پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن 450-500 میں ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن دے رہی تو اوکے, ہم تو راضی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی سارے پرائیویٹ ڈراپ لیں گے, ٹیچرس کی پے بھی اس میں کرنا ہے, اور گورنمنٹ کو صرف 500-600 کا ایک اسٹوڈنٹ پڑھنا ہے. یعنی اگر گورنمنٹ پنجاب کے تھنک ٹینکر سوچ رہے ہیں, سن رہے ہیں پروگرام کو, تو ان کو بتایا آپ اس کو کیلکولیٹ کریں. ایک طرف ایک بچے کا 3200 روپے, دوسری طرف 500 روپے. کتنا بڑا ہیوی بجٹ جو ہے پنجاب کا سیو ہو سکتا ہے اور ایک اچھی کوالٹی ایجوکیشن بھی مل سکتی ہے. دوسرا, جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں, جتنے بورڈ ہیں, جتنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں, سب کو ہم لوگ ٹیکسز پے کر رہے ہیں. اور اولڈ ایج بینیفٹ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا تو پتہ نہیں کل ٹیچر نے آنا نہیں آنا, ہم پہ بھی وہ لاگو کیا جا رہا ہے. کمرشلائزیشن ٹیکس ہم پہ لاگو کیا جا رہا ہے. ہم پہلے یہی کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی گلی محلے میں, کسی علاقے میں کوئی بھی 2 نمبر کام شروع کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ پہلے رجسٹریشن کرواؤ. سکول والے کہتے ہیں کہ پہلے رجسٹریشن کرواؤ, اس کے لیے بھی لمبا چوڑا پلندہ ہے. اور حالانکہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہاں جی آپ اسکول بنانا چاہ رہے ہیں, آپ حکومت وقت کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں, اوکے جی بسم اللہ ہے, ہم آپ کو یہ سپورٹ کرتے ہیں, آپ اپنا کام اسٹارٹ کریں. تو حکومت کا فرض ہے نا کہ وہ ایسے نہ ہو کہ ان پڑھ اور جاہل بندہ ایک جو اسکول چیک کیا جائے نا, تنگ تو نہ کیا جائے. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی پروفیشنل بندہ ہے اس کی مدد کی جائے, اس کی مدد کی جائے. وہ آپ کا ساتھ دینا چاہ رہا ہے, وہ پاکستان کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہے, پاکستان کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے, آپ اس کو شولڈر دیں, آپ اس کا ساتھ دیں کہ بھائی واقعی آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. جتنے بھی گلی محلوں میں جہاں پہ بھی سکولز ہیں وہ گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سپورٹ کی جائے, نہ کہ ہمیں تنگ کیا جائے. اور اگر ہمیں تنگ کیا جائے گا تو آپ دیکھ لیں کہ ہم ہر گلی محلے میں ہیں, اور اگر ہم بھی جیسے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں کی طرح ہم بھی باہر نکل آتے ہیں تو پھر مشکل ہوگا حکومت کے لیے. اچھا, یعنی جو آپ کے وہ لبے لباب سمجھاؤں گفتگو ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمیں کیٹیگرائز کریں, ہمیں دوسروں کے ساتھ شامل نہ کریں. وہ اسکول جن کی 25,000 30,000 فیس ہے ان کو ہمارے ساتھ جو 500-700 فیس لینے والے 3,000 تک کے جو ادارے ہیں ان کو ان کے ساتھ نتی نہ کیا. بہت اچھی بات ہے. اور کیونکہ ابھی تک یہ ایسے کیا جا رہا ہے, میڈیا میں بھی جو ہے جب بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی پرائیویٹ اسکول وہ کیٹیگرائز نہیں کرتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا پرائیویٹ اسکول والے گھر جاتے ہیں بچے کو لینے کہ جی آپ بچہ ہمارے پاس لے کے آئے, کوالٹی دے رہے ہیں, پڑھائی کروا رہے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. اب کسی کو کسی تو کوئی ہے ہی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر کوالٹی دکھا رہا ہے. جب بھی بورڈ کا رزلٹ دیکھیں, یونیورسٹی کا رزلٹ دیکھیں, اب پنجاب میں 9 بورڈ ہے, 9 بورڈوں کا رزلٹ دیکھیں, 150 پوزیشنیں ہوتی ہیں, 150 پوزیشنوں میں تقریباً 130 پوزیشنیں پرائیویٹ اسکولوں کے پاس یا پرائیویٹ کالجز کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ یہ ہے کہ جو ان پٹ پرائیویٹ کالج لے رہے ہیں اور جو آؤٹ پٹ دے رہے ہیں, میرا دعویٰ ہے کہ وہ ایک تو ہے پوزیشن ہولڈر بچوں کو ٹاپ 100 کو خرید لیتے ہیں. آپ جو 50% والی ان پٹ جاری ہے پنجاب کالج میں, کپس میں,
आप उनको देखेंगे आउटपुट क्या है हमारे पब्लिक नहीं उनका दिमाग काम करता है, आप भी अपना दिमाग इस्तेमाल करें। ये देखें ब्राइब समर कैंप लगा चेक करवा देते, लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही, हमारे उनसे रिजल्ट बेहतर है, नंबर 1। अब मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, आप गजट उठाएं। दूसरी मैं बात ये कह रहा हूं कि ये जितने सियासी बुनियाद पर भर्ती है ना, डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर पॉलिटिकल बुनियाद पर, ये सिस्टम को फेल कर नहीं तो आप प्रिंसिपल चेयरमैन बोर्ड सियासी नहीं के अपने अदारे हैं, वो कॉलेज में बैठकर अपने प्राइवेट कॉलेजों की मशहूरी करते हैं, और ये पावरफुल लोग यही चेयरमैन लगते हैं, यही प्रिंसिपल लगते हैं, यही डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर और वजीर आला के इस क्वालिटी इनहांस प्रोग्राम को ये नाकाम करने के लिए हमें मुश्तैल कर रहे हैं। और हम मुश्तैल क्यों नहीं हुए, हम 3 मरतबा भी हाजिरी लगा रहे हैं अपने सेक्रेटरी को आपके जरिए से ये पैगाम। और जो सबसे ज्यादा खवातीन का क्या प्रॉब्लम है सर, आपने जो बताया आप कोई प्रॉब्लम नहीं लेते हैं, हम चाहे 4 दफा हाजिरी लगाए, हम चाहे 5 दफा हाजिरी लगाए, आपको क्या, हम आपको चेक करेंगे। आप सुबह के वक्त टाइम पे है, दोपहर को हम फिर चेक करेंगे। आप दरमियान में से चुप्पी लगा के जो है वो आप प्राइवेट कॉलेज में जाकर पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं? आप कौन होते हैं हमें चेक करने वाले? क्या बात हम मैं बताता हूँ, आप बात सुने दिया। बात यह है कि हम कोई महकमा तालीम में बाई चांस नहीं आए, हम बाई चॉइस आए हैं, हमने इसका इंतखाब किया है। इसे मिली पेशा समझते हैं, कौमी पेशा समझते हैं, इसे मजहबी पेशा समझते हैं, इसे दीनी पेशा समझते हैं, इसे पैगंबराना पेशा समझते हैं। आप करते क्या है कि मेजॉरिटी की बात ही नहीं करते, और जब से बात कर रहे हैं एक माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, भी 1% को आप धक्का दो और बच्चों की बात करो तो सारा मतलब ताउन करें ना, ये कह रहे हैं। यह बात सुने अगली बात, जब आप वहां हैरेसमेंट फैलाएंगे तो रिजल्ट आप नहीं ले सकते। और जब तक आपको पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो काम हो रहा है वो टाइम टेबल ओरिएंटेड है, असातिज़ा जाते हैं, अपनी क्लास लेते हैं और वापस आ जाते हैं। जब आप हरासमेंट पैदा करेंगे तो क्या वो रिजल्ट ले सकेंगे? गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो रिजल्ट देते हैं, और अकेडमियों वाले कह देते हैं ये बच्चा जीसीयू में पढ़ रहा है जी, हमारी वो दिन में सारा वहां गुजारता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप में सारा वक्त गुजारता है। असातिज़ा तजुर्बाकार उसे पढ़ाते हैं। कौन असातिज़ा है? नंबर 1 कि जिन्होंने तहरीरी इम्तहान दिया है, हजारों में से सैकड़ों में आए, जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन दिया है और इंटरव्यू देने के बाद फिर वो सिलेक्ट होते हैं। आप क्या समझते हैं ये अकेडमियों में और जो दूसरे कॉलेजेस हैं ये असातिज़ा क्या इनके मुकाबले हो सकते हैं? ये उन इदारों से सिलेक्ट हैं जो आईने पाकिस्तान ने बनाए, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, और इनके मुकाबले में गवर्नमेंट कॉलेज सीटीआई भी हमारे आते हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आते हैं। इन असातिज़ा के बराबर दूसरे असातिज़ा नहीं हो सकते। ये रिकॉर्ड पर हम भी कह रहे हैं कि आपका मुकाबला कोई नहीं है। मकसद ये है कि आप जो है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप अपने कॉलेज को छोड़ के दूसरे कॉलेज में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, यही कॉलेज में 3 पीरियड पढ़ा के आते हैं, थक के जनाब बैठ जाते हैं, और जनाब वाली उसके बाद फिर शाम को फिर आप अकेडमी में पढ़ाते हैं। आपको वो साजा याद नहीं आते कि वो सारा दिन अपने वक्त सारा तालीमी इदारा में गुजारते हैं। मैं 8 बजे पहला पीरियड लेता हूं और मैं 2 बजे कॉलेज को छोड़ता हूं, और हमारे सब कॉलेज के सारे लोग ऐसे करते हैं। आप किस जजीरे की बात कर रहे हैं? जजीरे की बात कर रहे हैं, जजीरे की बात सुने। आप हकायत की दुनिया में आए, हकायत की दुनिया में आए, हकायत की दुनिया में आप आते हैं। मैंने कहा कि अखबारात के अंदर नाम छपे हैं, आपके पास है या नहीं? कहते हैं। मैंने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी? बट डायरेक्टर के पास रिटन नाम है 75 अफराद के, डिपार्टमेंट लिखा है, नाम लिखा है, वक्त लिखा है, कौन किस नाम दीजिएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि जी हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, नो डाउट के प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट कॉलेजेस हो, इनके पास कॉम्पिटेंट स्टाफ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस जज्बे की ये बात करें उस जज्बे के साथ टीचर काम की कमी है। नाज़रीन मैं आपके प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे हैं, ये जो 12.5 एसोसिएशन का मकसद, आपकी एसोसिएशन का मकसद सिर्फ जो है
लेक्चरर या प्रोफेसर जो है उन्हीं की मफादात का तफस कर ये बच्चे आपके बच्चे नहीं, स्टूडेंट्स ये बच्चे आपके बच्चे हैं ना, मैं देखे मैं ये कौन के बच्चे हैं, देखिए उनको आप भी एसोसिएशन को ये भी तो सच है जी, हम तो ये कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पता है कि CTI के तहत इन्होंने रखे हुए हैं जो भी नाम ने आज जो भी असासा रखे हुए हैं, CTI तो बड़ी दूर की बात है, हम तो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी को खत्म करने पर इनको खराज तहसील पेश कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने 1800 भर्ती की, हालांकि इन्हें 3600 भर्ती करनी चाहिए, और जो 1800 भर्ती किए हैं वो भी 15 अगस्त से पहले ज्वाइन होने चाहिए थे। अब ये 2 महीने बाद उनके ऑर्डर कर सर यही तो देखे ना, मैं आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। प्राइवेट अदारे जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट आता है वो फौरन समर कैंप के नाम के ऊपर चाहे जो भी उनका तरीका है वो एंगेज कर लेते हैं बच्चों को। आप सोए होते हैं और ये आप भी समर कैंप लगाए ना? नहीं, मैं हमने समर कैंप ले जाते हैं, हमने समर कैंप लगाया है मुस्तकिल बुनियादों पर करते और पर पीरियड मुआवजे पर हमारे बाद 2-3% लोग होंगे जिनको ब्राइब किया जाए, और उनको ये हमारी जितनी डायरेक्टर्स की, डिप्टी डायरेक्टर्स की और अपना ये क्यों नहीं पकड़ती। सवाल ये कि पिछले साल इन्होंने कितने लोगों को पकड़ा, अब ये 1 महीने से इन्होंने जेल खानों के अंदर तब्दील कर दिया है, खुसूसन खवातीन कॉलेजों को, और उसके वार्डन बनी बैठी प्रिंसिपल कि जो अहकामात सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन की तरफ से जारी होते हैं उसमें इजाफा करके 1 नहीं 3-3 मरतबा जब फोकस किया जा रहा है, हाजिरी लगवाई जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने सुबह की अटेंडेंस लगा दी, अब सब्जेक्ट टू टाइम टेबल है, कोई क्लासरूम पर फोकस नहीं किया जा रहा, कोई टाइम टेबल पर फोकस नहीं किया जा रहा, और खुसूसन खवातीन की परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है, उनके रिजल्ट बेहतर हैं, और उनके जो कॉलेज हैं उसको जेल खाने के अंदर तब्दील हमें मजबूर किया जा रहा है। जो लोग प्राइवेट कॉलेजों के एजेंट हैं, डायरेक्टर्स में, डिप्टी डायरेक्टर्स में, भाई सवाल ये पैदा होता है कि वहां डिफॉल्टर बैठे हैं, अकेडमियों में बैठे 8 से 2 बजे अकेडमियां चलाने में, वहां डिफॉल्टर कितने पकड़े। अगर आप नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ना चाहते, तो सारा नजला उन लोगों पर ज्यादा अजाब नाजल हुआ है कि जो खवातीन हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर, जो ट्यूशन नहीं पढ़ाती, जो दीगर कॉलेजेस में नहीं पढ़ा रही। मैं ये आपको कह रहा हूं कि हमने तो एक कोड ऑफ एथिक्स साइन किया हुआ है, हम अपने क्लास कोड ऑफ एथिक्स हम बिल्कुल बाउंड है, वो ये भी तो शामिल है उस बात पे कि आप वक्त पे आए, वक्त पे जाएं, आपको जो भी पीरियड दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से पढ़ाएं। आपके सर मैं ये थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा, आप रिजवानुल हक साहब, आपके असातिज़ा बाकी स्कूलों में जाके तो बड़े जनाब अलर्ट होकर पढ़ाते हैं, ठीक है, 2-2, 3-3 पीरियड वो डुबकी लगा लेते हैं, वो पढ़ा के आते हैं, और थके हुए जब आते हैं अपने कॉलेज में जहां से वो पे ले रहे हैं, वहां आते हैं तो जनाब धड़ाम से कुर्सी पे गिर जाते हैं, और उसके बाद जो है वो पढ़ाने के बजाय जो है बस वो अपनी नींद पूरी करते हैं। ये भी तो ज्यादती है ना। काली भेड़ें किस डिपार्टमेंट में नहीं होती, लेकिन काली भेड़ों की तादाद आटे में नमक के बराबर होती है। तो अब 1% लोग जो हैं वो अगर सारे डिपार्टमेंट को बदनाम करें तो ये 99% लोगों के साथ ज्यादती के मुतरादिफ। एक बात ये ठीक है कि है गारत चमन में यकीनन किसी का हाथ, शाखों पे उंगलियों के निशान देखता हूं मैं, लेकिन ये बात ऐसे नहीं है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वसाइल रखती है, वो गवर्नमेंट कमजोर गवर्नमेंट होती है जिस गवर्नमेंट में गैर कानूनी काम करने वाले खुलेआम फिरे। गवर्नमेंट को किसने रोका है? वो कैसे आप रोकते हैं? एसोसिएशन वाले हम एसोसिएशन आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, ये में हड़ताल की धमकी दे देते हैं। नहीं, ऐसी कतन कोई रकम। मैं वजीर आला के साथ मीटिंगों में शामिल रहा हूं, डॉक्टर साहब के साथ। हाँ जी। और जितनी मीटिंगें सेक्रेटरी से हुई हैं, चीफ सेक्रेटरी से हुई हैं, वजीर तालीम के साथ हुई हैं, वजीर कानून के साथ हुई हैं, कभी हमने इनको डिफेंड नहीं किया इन लोगों को। नहीं, उनका बस ये जब भी हम एक्शन लेने लगते हैं और जनाब यही वो लोग हैं, हम एसोसिएशन वाले हैं जो जनाब बोली हमें धमकियां भी देते हैं, हम हड़ताल कर देंगे, हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो हमने तो सारी बातों को उबे किया इस वक्त भी, और कोई प्रोटेस्ट की कॉल नहीं कि जितना मर्जी आप जो है सख्ती करें। हमारा फोकस ये है कि हम तो जो आप कहें मानने के लिए तैयार। सवाल यह कि जो डिफॉल्टर हैं उनको भी कोई नकेल डाल जाए या उससे आप नजराने वसूल करके, और आप अंदाजा करें सेक्रेटरीट के अंदर सेक्रेटरी के साथ जो डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, सर अगर वो भी कंसल्टेंट बने हुए हैं प्राइवेट अदारों के और 2-2, 3-3 लाख पे वसूल कर रहे हैं, तो कौन इनको पूछने वाला है? ये कभी नहीं पकड़ेंगे डिफॉल्टर। आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि हमारे ऐसे DPI भी गुजरे हैं
मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल को बुला के कहते हैं कि तुमने पंजाब कॉलेज का पट्टा बिठा दिया और मियां आमिर मेरे पास आया था और आपने उनको बंद करवा दिया पंजाब कॉलेज को और फलां कॉलेज को। ये प्राइवेट कॉलेजों का माफिया, जो प्रिंसिपल्स भी हैं, डिप्टी डायरेक्टर भी शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर भी शेयर, और उन असातिज़ा के नाम प्रिंटेड है अखबारात के अंदर, ये उनको हाथ नहीं डाल दें बल्कि उनको प्रोटेक्शन दे दें। देखिए आप हाजिरी लगा के सारे लोग जो है वो टिकट बनाने के लिए चले जाते, इनको कोई नहीं पकड़ता। अच्छा मैम जैनब मुझे सुन रही है आप? ये डीपीआई कॉलेजेस को जरा मिलाइएगा, डीपीआई कॉलेजेस को मिलाइएगा। अच्छा जी, हम कोशिश करते हैं कि डीपीआई साहब से हम बात कर सके। शेख मोहम्मद अरशद साहब, आप प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और आप एक जो एसोसिएशन है प्रोग्रेसिव प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, उसके भी रूरल रहा है, जनरल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल। आपने ये क्या बनाया हुआ है? लोग कहते हैं जी खा गए लूट के खा गए प्राइवेट स्कूल, खा गए। कितनी फीसें ले रहे हैं आप? आपका फीस स्ट्रक्चर क्या है स्कूलों का जिसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रॉयल टीवी का और प्रोफेसर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि एजुकेशन पे भी कोई चैनल प्रोग्राम करता है और एजुकेशन को भी उनके मसाइल सुनने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आप एक कावश कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आमीन आमीन। लेकिन इसमें मेरा तो चलो जो कुछ है, हमारे जो मालकान है खासतौर पर मियां भट्टू साहब हो गए, खिजर भट्टू साहब हो गए, और हमारे जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं आतिफ साहब, ये उनका तालीम दोस्त होने का वाज़ह सबूत है कि वो तालीम दोस्त हैं। और जैसे कि आपने प्रोग्राम के स्टार्ट पे ये बात की कि अगर किसी भी मुल्क को आपने आगे लेके जाना है तो तालीम है, और अगर कोई चैनल चाहता है कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है तो पाकिस्तान की खिदमत एजुकेशन से स्टार्ट होती है, और ये आपका बड़ा एहसन इक़दाम है और इंशाल्लाह जरूर अल्लाह ने चाहा तो इसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जी जी। प्राइवेट सेक्टर की बात की देखें आप, पाकिस्तान का लाभ उठा के देख लें तो वहां बच्चे को एजुकेट करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत वक्त या कोई भी जो हमारी हुकूमत अभी तक अपनी ये जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा नहीं सकी। बिल्कुल सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर ने जो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी उसको प्राइवेट सेक्टर ऐसे तरीके से निभा रहा है। यानी इतना बड़ा एक पार्ट जो कि शायद वो तो उनको नजर नहीं आना। मुझे सिर्फ आप ये बताएं, मैं जो शार्ट चाह रहा हूं ताकि मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन हो सके, ये बताएं आप फीस कितनी ले रहे हैं? जी प्रोफेसर, मैं यही वादा करने लगा हूं कि इनको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या है। मैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं वो लोग प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनकी फीस आप समझ लें कि 500 से स्टार्ट होकर 1000 तक, 1200 से स्टार्ट होकर 1000 रुपए तक फीस है जो आपकी एसोसिएशन के स्कूल ले रहे हैं। तो मुझे ये बताया कि आपके जो एसोसिएशन जिन स्कूलों की नुमाइंदगी करते हैं वो पूरे पाकिस्तान के स्कूलों का कितने परसेंट है? हम यानी कि मेरा ख्याल है 90% होगा जी। जो ऐसे स्कूल हैं जो कि लो कास्ट प्राइवेट स्कूल 90% से प्लस हैं, बल्कि अगर आप 3,500 की लिमिट रख लें तो हम 95% हो गए, हम 95% हैं। बिल्कुल सही है। जो जिनके बारे में ये अथॉरिटीज बना रहे हैं, जिनके बारे में शोर शराबा किया जा रहा है, वो सिर्फ 2-4% है। मैं यही आपके मुंह से सुनना चाह रहा था कि जिन्होंने फीसें बढ़ाई हैं उनकी फीसें तो हमारी 26,000 है, वो 26,000 से डायरेक्ट 36,000 कर रहे हैं और आप तो 3,000 तक फीस नहीं ले रहे। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि आपकी मेहरबानी, अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई सोचना चाह रहे हैं, तो उन स्कूलों को देखें जिन्होंने 20,000 से उठा के 36,000 कर दिए। और मैं थोड़ा सा और हम भी थोड़ा सा एंकर हजरात जो है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। आप जब भी बैठ के तजिया किया है, आपने बिल्कुल गलत तजिया किया है। आप कहते जी प्राइवेट स्कूलों ने ये किया, प्राइवेट स्कूलों ने ये किया, और दानश्वर और पंजाब बड़े बड़े एंकर साहबान, आपको पता होना चाहिए वो सिर्फ 1 या 2% है। बाकी वो स्कूल है जो गली मोहल्लों में कायम है, जिनकी जो फीसें हैं वो 1000 रुपए तक है। आपने उनको भी रगड़ा लगा दिया और आपकी गलत तशरीह की वजह से हुकूमत ने जो उजली अथॉरिटीज कायम कर दी हैं, उसका नुकसान पता क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि वो उन्हीं गली मोहल्ले के जो स्कूल है इन्हीं को ब्लैकमेल करेंगे, इन्हीं पे सख्तियां करेंगे, और वो जो स्कूल है वो तो इनको अंदर नहीं घुसने देंगे। इसलिए एंकर साहिबान जनाब, बड़े आप तजियाकार बने फिरते हैं, आप खुदा के लिए इसको थोड़ा ठीक कर ले और आइंदा प्रोग्रामों में जब भी आप इनका जिक्र करें, बाद प्राइवेट स्कूल जिक्र करें, बाद प्राइवेट स्कूल के अल्फाज इस्तेमाल करें।
پرائیویٹ اسکولوں نے یہ کر دیا, پرائیویٹ اسکولوں نے کر دیا. 95% وہ پرائیویٹ اسکول ہیں جو کہ صرف 500 سے لے کر 3000 تک فیس لے رہے ہیں. میں یہ تھوڑی سی آپ کی کرنا چاہ رہا تھا. جی بالکل بالکل, کیونکہ یہ ہمارے جو اینکر حضرات ہیں تجزیہ, وہ تو ان کو اندر بھی نہیں آنے دیں گے. ان اسکولوں میں ان کے اپنے بچے پڑھتے ہیں, اور آپ جو ہے ان معصوم لوگوں کو جو کہ کرائے کے انہوں نے بلڈنگیں لی ہوئی ہیں, وہ جناب بڑی مشکل سے ان کے خرچے پورے ہو رہے ہیں, اسی میں ان کی دال روٹی چل رہی ہے, اور آپ نے ان پہ ظلم کر دیے. ہاں یہی اشرف صاحب میں آپ سے سننا چاہتا تھا, جو کہ بالکل آپ نے بتا دیا. آپ نے چونکہ اینکر صاحبان سے بات کی, ہم یہی سیکھتا رہا ہوں. تو گورنمنٹ سے بات کریں گے. آپ کی مہربانی. آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے پاکستان کے خلاف, ایجوکیشن کے خلاف. یہ ایک سازش ہے کہ اگر ایک سیکٹر اچھی طریقے سے پرفارم کر رہا ہے, جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نیو جنریشن اچھی طریقے سے ایجوکیٹ ہو کے آگے بڑھ رہی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھیں, پرائیویٹ سیکٹر کی ہی پوزیشن ہے, پرائیویٹ سیکٹر کے ہی بچے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن ایک سازش کے تحت اس ڈپارٹمنٹ کو, پرائیویٹ سیکٹر کو تباہ کیا جا رہا ہے. ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ بھائی 95% وہ اسکول ہے جن کو تو آپ کی سپورٹ چاہیے, آپ کا شولڈر چاہیے. ارشد صاحب ایک اور بھی ان سے اپیل کر لیں, اگر رانا مشہور صاحب ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ جو عدلی اتھارٹیاں بنانی ہے نا, ان میں انہوں نے بیکن ہاؤس سٹی اور اسی طرح کے ادارے آ جانے ہیں. آپ کی نمائندگی بھی کوئی نہیں ہونی ادھر. یہی ہم کہتے ہیں. جی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے تینوں جو شرکا تھے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس پروگرام میں حصہ لیا, اور جو لبا مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے, خاص طور پر حکومت پنجاب کو چاہیے کہ جو پبلک سیکٹر کے جو کالجز ہیں, جو اسکول ہے, ان کے جو مسائل ہیں وہ ترجیحی بنیادوں پہ حل کرے. خاص طور پہ جو خواتین کے مسائل ہیں, خواتین کے جو کالجز ہیں وہاں پہ وہ بالکل قیدی بن کے رہ گئی ہیں. اس حوالے سے جو ہے وہ ہماری التجا ہے کہ آپ آئیں. اور اسکولوں کے حوالے سے جانا کہ بھی ارشد صاحب نے فرمایا کہ سارے اسکول 25,000 فیس نہیں لے رہے, وہ بھی ہیں جو 500 لے رہے ہیں, کوئی 1000 لے رہے ہیں, ان کی بھی جو ہے وہ مدد کی جائے, اور اساتذہ کی عزت جو ہے اس کو ایک وقار کو بحال کیا جائے. اور یقیناً انشاءاللہ یہ سب کچھ جب ہوگا تو ایک نئے جذبے کے ساتھ ہمارے اساتذہ کام کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.